Hi dear students, so in the previous class we had discussed about the types of solutions. In fact, the types of binary solutions. As I had told you that binary solutions are those solutions which are made up of only two components, a solute and a solvent. And we have also discussed about the ways of expressing concentration of solutions. Among those concentrations, actually we had not defined the normality. So in this lecture I would like to introduce normality. It's defined as the number of gram equivalents of a solute dissolved per liter of solution. So gram equivalents you can find simply its equivalent weight of a solute. We had discussed in the 11th class. So when we would come to numericals, we will discuss it there in detail. Okay. So today's topic is solubility. What is solubility? So solubility is defined as the maximum amount of a solute that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specific temperature and pressure. So I want to make it more clear to you कि अगर हम किसी साल्ट को डिज़ोल्व करना चाहते हैं जैसे वाटर में, ठीक है, आप कितना मैक्सिमम अमाउंट उसका डिज़ोल्व कर सकते हैं इससे पहले कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे. Because you know that in a given solvent there are fixed number of interparticle spaces, ठीक है ना. तो जब तक वो साल्ट उसमें पूरा डिज़ोल्व नहीं होता वो तब तक सोल्यूशन अनसैचुरेटेड रहता है. Once the solute gets dissolved completely, it forms the saturated solution. And you know that solubility also depends on the temperature. If we increase the temperature, the solubility of solutes usually increases. और जो प्रेशर है, प्रेशर का इफेक्ट यूजुअली होता है ऑन द इफेक्ट solubility of gases in liquids, because gases are highly compressible, ठीक है. So effect of pressure is not taken with respect to solids or liquids because those are incompressible. So we can understand the effect of pressure when we dissolve carbon dioxide in water. For example, आपने देखा होगा कि cold drinks they are being stored under very high pressure. उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है that forms carbonic acid in water. So those that's stored under very high pressure so that the solubility of carbon dioxide is increased in water. Okay. So आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा किसी साल्ट को डिज़ोल्व कर सकते हैं वाटर में तो उसको हम बोल सकते हैं solubility. Now factors affecting the solubility. One factor is nature of the solute, another is nature of solvent, temperature and pressure. तो solute कैसा है, जैसे ionic substances they dissolve faster, है ना. नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये एक्चुअली हम देखते हैं कि दो सॉल्वेंट्स जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उनमें साल्ट्स यूजुअली ज़्यादा डिज़ोल्व होते हैं. सो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज़ होती है. नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटीज़, वी कैन डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड and solubility of gas in a liquid and solubility of liquid in a liquid. So जैसे आपने देखा होगा solubility of a solid in a liquid. So for example we dissolve salt in water. So how does it vary? You can check it. Okay. We can dissolve sodium chloride. जैसे यहाँ पे एक question है, name some readily soluble solids in water but not in organic solvents. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक्चुअली नॉन पोलर होते हैं. वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. तो जो वाटर होता है उसमें यूजुअली पोलर सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं एंड इवन सम नॉन पोलर सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज है वो वाटर में डिज़ोल्व होता है या शुगर भी डिज़ोल्व होता है. ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं वाटर के साथ, ठीक है. सोडियम क्लोराइड इसलिए डिज़ोल्व होता है क्योंकि उसके आयंस को सॉल्वेशन होती है वाटर में, वो आयंस बनाता है. तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एक्चुअली उनमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है सोडियम क्लोराइड, वो इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉन पोलर होते हैं. जैसे बेंजीन है, टॉल्विन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म या सॉरी टॉल्विन है, एसीटोन है, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम सम सॉलिड सोल्यूट्स विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट नॉट इन वाटर. तो एंथ्रेसिन है, नेप्थलीन है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस एक्चुअली ये ऑर्गेनिक है. वी डोंट लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है ना.
तो ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक ही डिजॉल्व हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक ही डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर इनऑर्गेनिक है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो गिवन हियर। जैसे मैंने कहा कि ग्लूकोज जो है इट इज़ एन non-polar substance but it dissolves in water because of the hydrogen bonding. Similar is the case with alcohols. Alcohols में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, ठीक है ना, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इज डिसोलेशन। डिसोलेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट टू इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। आप एक सॉलिड को डिज़ोल्व करना चाहते हैं वाटर में ताकि उसकी कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाए, डिसोल्यूशन होता है सिंपली डिज़ोल्व करना। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट्स द प्रोसेस इन विच सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट। तो या क्रिस्टलाइजेशन से हम किसी क्रिस्टल सॉलिड्स ये ना लिक्विड में से किसी सब्सटेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं बैक। सो जब कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड होता है उस टाइम हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? इट्स अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आपको टेम्परेचर या प्रेशर चेंज नहीं करना है। तो जब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इट इज़ दैट सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। जैसे वाटर जिसमें आपने साल्ट अभी डिसॉल्व नहीं किया है उसको हम अनसैचुरेटेड बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। जैसे मैंने आपको कहा कि गैसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड नहीं है कि डायरेक्ट वाटर में ऐड कर दिया तो डिसॉल्व हो गया। तो गैसेस को डिसॉल्व करने के लिए आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। इवन यू कैन मे डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स आर यूजुअली सर्व्ड रेफ्रिजरेटेड। वाई? क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। आप वहाँ पे प्रेशर तो फर्दर इंक्रीज नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सील्ड बोतल होती है, उसमें वो जो सब्सटेंस होता है कोल्ड ड्रिंक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें जो डिसॉल्व किया होता है दैट स्टोर्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर, ठीक है ना। सिंपली यू कीप इन द रेफ्रिजरेटर द गैस वुड गेट डिसॉल्व्ड मोर। तो हमारे पास एक लॉ है, हेनरी था एक साइंटिस्ट, उसने एक लॉ दिया कि हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में कैसे बढ़ सकती है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी पार्शियल प्रेशर, है ना। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इन 11th। उसमें हमने बताया था कि पार्शियल प्रेशर किसी गैस का होता है अपना इंडिविजुअल प्रेशर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में। फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ओके, 2-3 गैसेस और 4 गैसेस। सपोज मैं कहता हूँ इन सब का टोटल प्रेशर मिला के 1 एटमॉस्फेयर है। अगर मैं बोलता हूँ इसमें हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, सपोज इसका है 0.2, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है 0.5, सपोज दूसरे का भी 0.3, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। सो टोटल मिला के कितना बन रहा है, सपोज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? सो एक पर्टिकुलर प्रेशर गैस का प्रेशर कितना है उसका पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बताने का मतलब ये है हेनरीज लॉ में कि अगर आप किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दीजिए लिक्विड की सरफेस के ऊपर, ठीक है। वही होता है पार्शियल प्रेशर, उस गैस का इंक्रीज कर दीजिए ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो किसी सोल्यूट को आप जब डिसॉल्व करते हैं ना किसी लिक्विड में, तो उसका मतलब होता है आप उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो लिक्विड में इंक्रीज करना चाहते हैं। जब आप उसका कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, तो उसका मतलब है उस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक मेथड है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का। तो मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी डिफाइन हेनरीज लॉ नाउ एज इट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था
किसी गैस को अगर आप डिजॉल्व करना चाहते हैं किसी लिक्विड में, तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ा दीजिए, उसका प्रेशर बढ़ा दीजिए. दैट्स व्हाई वी राइट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक्चुअली इट्स x here इज मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप किसी गैस को लिक्विड में इंक्रीज करोगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे उसकी एक्चुअली मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी. ठीक है, सो आई कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द लिक्विड. ओके, तो ये है. तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू के एच इंटू काई, वेयर के एच इज द प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट, H फॉर हेनरी, K फॉर कांस्टेंट. ये हेनरीज कांस्टेंट है. ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे, इट इज मोल फ्रैक्शन. P क्या है, इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जैसे यहाँ पे भी हमने लिखा है. ठीक है, नाउ यू मस्ट रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फॉर बोर्ड पर्पजेज, एग्जाम पर्पजेज, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर competitive exam purposes. So variation of KH is directly proportional to T. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आपको ये भी पता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में क्या हो जाती है, डिक्रीज. तो इसका मतलब होता है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज, तो उनको डिज़ोल्व करना डिफ़िकल्ट होता है. जैसे आपने देखा है, सिंपली अगेन आई टेल यू, कि जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को सर्व करना चाहते हैं तो हम उसको फ्रिज में रख के सर्व करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि लो टेम्परेचर पे उसका एसिडिक टेस्ट बढ़ता है. वो इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा डिज़ोल्व होता है लो टेम्परेचर पे. ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिस गैस का हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा हो वो लेस सॉल्युबल होगा. ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे देखिए KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. ठीक है, सो वी कैन इन टर्न से नाउ KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. इन शॉर्ट, अगर आपको दिया होगा किसी गैस का दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हेनरीज कांस्टेंट दिया होगा, ठीक है, तो जब हेनरीज कांस्टेंट कम होगा तो उसका मतलब है सॉल्युबिलिटी उसकी क्या है, ज़्यादा. So KH is inversely proportional to solubility. In short, you can remember it like this. ठीक है, और I can say solubility is inversely proportional to temperature also. Temperature increase करने से solubility क्या होती है, decrease. So we can say now the oxygen gas has more solubility in water in winter season. Okay, where the temperature is less. तो अगर आप ऑक्सीजन को डिजॉल्व करना चाहते हैं वाटर में, आपको पता है एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वाटर में सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो विंटर में उनका सर्वाइव करना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कम होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है. ठीक है, एज अ रिजल्ट फिश इज़ मोर कंफर्टेबल इन विंटर सीजन दैन इन समर सीजन बिकॉज दे गेट मोर ऑक्सीजन. ओके, द वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर इज डिफरेंट, विच कन्फर्म्स दैट हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस. तो हेनरीज कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है. ठीक है ना, जैसे डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में सेम नहीं होती है. जैसे हम कहते हैं सॉलिड्स में भी यही है कि अलग अलग सॉलिड्स सेम लिक्विड में सेम अमाउंट उनका डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है, इसी तरह हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस. KH फॉर द सेम गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफरेंट. ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे KH का वैल्यू भी डिक्रीज होता है. तो अगर आप एक ही गैस लेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस लेंगे, सपोज आप उसका 98 केल्विन पे इसका KH देखेंगे, वो उसकी वैल्यू कम होगी. इसके बरक्स अगर आप उसका वैल्यू देखेंगे 300 केल्विन पे या 310 केल्विन पे, तो KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा. तो उसका मतलब है जो KH वैल्यू जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. इन शॉर्ट, सो आई होप यहाँ तक अराउंड 15 मिनट्स हो रहे हैं वीडियो में. आई कुड हैव कंटिन्यूड मोर. होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ. आई वुड नाउ ट्राई टू स्टॉप फ्रॉम हियर. Then we will discuss in next lecture applications of Henry's law. So have a nice day. If you have any doubts, please let me know. Thank you.